ठीक है, तो ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स वाला चैप्टर है, इसमें हम लोग डिस्कस तो किए, सिंपल वाला चैप्टर है, लेकिन इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है वो है डेफिनेशन बेस्ड एंड कंपैरिजन. ओके, सो seemingly easy chapter, but marks will be mainly lost deducted because of the definitions. So we will go through the, आप लिखिए इसमें जो है, I want you to write, I will also send you. ओके, लेकिन आप जब लिखोगे तो आप जानिएगा इम्पोर्टेंस. ओके, because it took me a lot of effort myself also to prepare this one. Each and every that point is important here. Okay, starting with the first one, जनरल स्टडी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ब्रीफ आइडिया फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स. ये आपका सिलेबस में लिखा होगा. सबसे पहला डेफिनेशन जो इसमें आप देखोगे, दैट इज द व्हाट इज फाइटो हार्मोन्स. फाइटो हार्मोन्स आर नाउ नोन एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. अब उसको हार्मोन्स शब्द ज्यादा यूज नहीं किया जाता, ये पुराना टाइप का शब्द हो गया. क्यों? क्योंकि हार्मोन का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, बट इट्स साइट ऑफ सिंथेसिस एंड इट्स साइट ऑफ एक्शन आर नॉट सेम, डिफरेंट. पैंक्रियास में बना इंसुलिन, लेकिन उसका एक्शन कहीं और दूर में रहेगा. ओके, सो यहां पे क्योंकि प्लांट हार्मोन्स, इनका एक्शन कई बार उसी जगह पे होता है जहां उनका सिंथेसिस होता है, इसीलिए अब उसका टर्म प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कर दिया गया. इसीलिए ब्रैकेट में हमने लिखा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड एट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशंस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट and have a role in all growth and developmental processes. Phytohormones are organic compounds produced at very low concentrations in various parts of the plant organic compounds, very low concentration in various parts of the plant having role in the growth and development process. Next, definition for apical dominance. कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जो कि हम लोग बहुत बार यूज कर रहे हैं, रेगुलर यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका एग्जैक्ट लिखने का तरीका एग्जाम में डेफिनेशन मांगा जाएगा. Apical dominance is the suppression of growth of lateral buds by the apical buds. That is the simple definition. Suppression of growth of lateral buds by the apical buds. Centromere. Centromere is located in the chromosome at the junction of sister chromatids. और तुम ब्रॉड लिख सकते हो इन द न्यूक्लियस, वो सब लिख सकते हो, लेकिन मेन मोस्ट स्पेसिफिक लोकेशन है हाँ जंक्शन ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड्स इन द क्रोमोसोम्स. Parthenocarpy. Parthenocarpy is a type of fruit production without fertilization of ovules. The fruits produced are seedless. Without fertilization of ovules, and they are seedless. Abscission. Controlled shedding of leaves, flowers and fruits naturally from the parent plant.
controlled shedding of leaves, flowers and fruits naturally from the parent. Okay. नेक्स्ट, जो डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, 5 आर देयर इन सिलेबस. इसमें 3 इंपॉर्टेंट क्या क्या है? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, ओके, इन रेगुलेटिंग देयर ग्रोथ. In addition to physiological effects, which are the functions we will see down, how they are functioning broadly, whether they are promoter, inhibitor, okay, and what is the site of synthesis. So सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम लोग लिखे, ग्रोथ प्रमोटर, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन. अच्छा, so 3 of these are coming under the growth promoter. Whereas abscisic acid is inhibitor. Ethylene is both, act as both growth promoter as well as inhibitor. First point. In second point, site of synthesis. Shoot apical meristem, shoot apex, lateral meristem, young leaves. Example is indoleacetic acid, which is most abundant form. In gibberellins, it is also same. Shoot apical meristem, root apical meristem, seeds, etc. Gibberellic acid Ga3 is most studied. Site of synthesis for cytokinins is unique because it is in root tips and it is transported through the xylem. सबसे ज्यादा abundant germinating seeds, developing fruits, embryos, etc. में रहे. Site of synthesis of ethylene, all living cells will produce, but it is mainly more produced in the meristematic tissue. Site of synthesis and action is same. So this is one very clear that it is not hormone, and it is the only one which is gas. Growth inhibitor, abscisic acid. Site of synthesis is in the chloroplast. Precursor molecules are there in the chloroplast, and once they are produced, they are transported by both xylem and phloem to all the other parts of the plant. Okay, that is not in our syllabus. Only site of synthesis is generally written as in the chloroplast. Fruits and seeds contain the highest amounts of the ABA. After that, functions. Okay, we will see. First, this much part you write. You make table. You make table. Best is you go to this next page. You write in a landscape or something. No, then it will be better. आप ऐसे ऐसे लिखोगे ना तो जगह कम पड़ जाएगा, तो लैंडस्केप करते हैं, चलो रोटेट कर. अपना मेन टारगेट है कि एग्जाम के पहले आप थरोली विद इन 2 to 3 मिनट्स एकदम बढ़िया से की पॉइंट्स को कंपैरिजन करते हुए माइंड में फिट करने का कैपेसिटी होना चाहिए. आज हम लोग 1 घंटे का जो क्लास कर रहे हैं, एग्जाम के पहले 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए. ओके, आप बाद में इसको अपनी तरीके से रिफाइन भी कर सकते हैं. जैसे कि ये 3 तो ग्रोथ प्रमोटर था, तो टेबल जो है ना, ऐसे आप तीनों को एक के अंदर बना दोगे. ठीक है, ऑल दीज आर ग्रोथ प्रमोटर्स.
Okay, so far we have discussed conceptually the chapters. Now, the coming classes, my main focus will be what you will write in the exam. Okay, more about the definitions, comparison of terms, differentiate between, arrange in the correct logical order. Here the type of questions हम लोग descriptive explanation type of questions का. ऑनलाइन में भी जो है आप लोग लिखेंगे शाश्वत एंड कुशाग्र, बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट. हाँ, जिसका थोड़ा चीटी वाला हैंडराइटिंग लिखने का आदत है उसको एडवांटेज रहेगा. अभी मेरा फोकस आपको ज्यादा लिखवाने के ऊपर रहेगा. हेलो, यस, ओके. नो, जस्ट आई एम नॉट. खत्म हो गया. फंक्शंस ऑनलाइन हम चेक करेंगे आपका किताब इन है कि घर पे बैठे हो तो हाँ कान खोद रहे हो बैठ के. हम चेक करेंगे अभी वीडियो में हम बोलेंगे दिखाने के लिए. ठीक है, अब देखो फंक्शंस. Functions we have to compare first. We have to look at what is the major one. Okay, जो characteristic ऑक्सिन्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है.
एपिकल डोमिनेंस। ओके, थर्ड पॉइंट में आ गया ये वाला एपिकल डोमिनेंस। और एपिकल डोमिनेंस को रिवर्स कौन करता है, मतलब इनहिबिट कौन करता है? साइटोकाइन। उसी तरीके से एक और रिवर्स वाला काम है, ब्रेक डॉर्मेंसी, ब्रेक सीड डॉर्मेंसी एंड इंड्यूस सीड जर्मिनेशन। ये काम हुआ गिबरलिन का। और इसका ऑपोजिट काम कौन कर रहा है? इनहिबिट सीड जर्मिनेशन एंड इंड्यूस डॉर्मेंसी, एबी। ब्रेक डॉर्मेंसी एंड प्रमोट जर्मिनेशन। सो दिस वन इज द वेरी एक्यूरेट, मतलब 1 to 1। लेकिन ऑप्शन में अगर आपको दिया गया कि गिबरलिन का अपोजिंग एक्शन किसका है, 2-3 ऑप्शन दिया, उसमें ये दोनों तो मैच करेगा, ये दोनों छोड़ के इसके साथ अगर कोई दूसरा अगड़म पगड़म मौजूद है, यू कैन चूज बिटवीन दिस टू। नेक्स्ट, प्रमोट ग्रोथ ऑफ स्टेम रूट एंड फ्रूट्स बाय सेल इलॉन्गेशन। गिबरलिन्स भी सेल इलॉन्गेशन, दोनों इलॉन्गेशन है। elongation, elongation. Whereas in the case of ethylene, it is reducing the stem elongation. This is opposing action. Here it is cell division. Instead of elongation, it is division. Leaf senescence. Senescence means aging. Okay. So here in the case of leaf there is senescence. In the case of गिबरलिन्स leaves वगैरह के इसमें क्या हो रहा है? Delay, same. Okay, effect is same. Generally, auxin and गिबरलिन we will see that they are very similar actions. Okay, आप इस points को rearrange कर सकते हो, जैसे कि ये delay सेंसन एजिंग को हम वापस सेकंड पॉइंट कर देते हैं, तो मैच हो जाएगा इधर इधर। हमको पता चल गया भैया यहाँ पे ये दोनों सेम सेम हो रहा है, तो आसानी हो जाएगा ना, माइंड में सेट करने में आसानी। आई विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन डिफरेंसेस फॉर एग्जाम्पल। ओके, इंड्यूस रूटिंग एंड कटिंग ऑफ, दिस इज द इंपॉर्टेंट। Induce rooting and cutting, induce parthenocarpy, parthenocarpy फिर ये दोनों में। आ रहे बेटा, ओके। दूसरा, ये जो 6th पॉइंट है, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ ग्रेप्स एंड इलोंगेट एप्पल्स, इसको आप अगर इस टाइप का कुछ बना लेते हैं ना, ग्रेप्स का जो गुच्छा रहता है, तो गिबरलिन्स का स्प्रे करने से क्या होगा, ग्रेप्स से लंबा नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक अर्लियर आल्सो वी डिस्कस ग्रेप्स लंबा होना, बट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेंथ ऑफ दैट वन, हाँ वो बंच का जो लेंथ है वो लंबा हो जाएगा।
और इसके कारण क्या होगा कि एक एक फ्रूट को अच्छा ग्रोथ लाने की चांस रहेगा। दूसरा, एप्पल वगैरह भी थोड़ा इलांगेटेड शेप में बने। माल्टिंग प्रोसेस, गिबरेलिंस में माल्टिंग प्रोसेस, तो आप इसको रीअरेंज कर सकते हो। जैसे मैच अगर करते हैं तो 1 1 के साथ मैच किया, और 2 डिले ऑफ सेंसेंस एंड ये वाला किसके साथ मैच किया, 2 इज मैच विथ डिले ऑफ सेंसेंस नंबर, हाँ ये नंबर 4 के साथ। ओके, तो हम इसको ये कर दिए। उसके बाद प्रमोट एपिकल डोमिनेंस, आपको इसका कोई ये नहीं है, तो हम लोग इसको पॉइंट नंबर 1 में ला सकते हैं। कट इंड्यूस रूटिंग एंड कटिंग, ये भी यूनिक पॉइंट है, इसको भी सेकंड पॉइंट कर सकते हैं। इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, ये कॉमन पॉइंट आ रहा है, इसको इसके साथ मैच कर देंगे, 5th पॉइंट के साथ मैच कर देंगे। और यहाँ पे ये दोनों इसका यूनिक पॉइंट्स, तो इसको आप रीअरेंज करिए और रिफाइन कर सकते हो। आप इसको रीअरेंज कीजिए। आई विल सी नेक्स्ट क्लास, ओके, यू शो मी, ओके, दिस हाउ यू रीअरेंज द पॉइंट्स, ओके, इन ए नीट वे फॉर यू just before exam, quick revision you want to do, okay, so this will be helpful. You can be, creative with colors also, no problem. ये आपके अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज करिए। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू साइटोकाइन्स, प्रमोट सेल डिवीजन इवन इन नॉन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अच्छा, यहाँ पे गिबरलिंस में एक पॉइंट है जो कि हम लोग उतना स्ट्रेस नहीं किए थे इसके पहले। हाँ, इवन इन जेनेटिकली डॉर्फ प्लांट, जैसे पी प्लांट में डॉर्फ और टॉल वाला वैरायटी रहता है, तो जो डॉर्फ वैरायटी है उसके ऊपर अगर गिबरलिन स्प्रे करेंगे तो टॉल वाले से भी लंबा वो जाला जाएगा। ये गिबरलिन का है, हाँ, यूनिक फंक्शन नहीं, हम तो बोलते हैं ये फर्स्ट वाला पॉइंट दोनों को तुम मिला के लिख लो, अलग से लिखने का जरूरत नहीं, इसी में इंक्लूड कर दो। ये चैप्टर जितना आसान लगता है उतना ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन द मोर यू आर प्रिपेयर्ड अबाउट इट, 2 टाइम कम से कम आपको लिखना है। टेबल अपने से बनाओ, कम से कम 2 बार अपने तरीके से उसको रिफाइन करो, तब कोई एक नंबर नहीं काट सकता चैप्टर से, फुल्ली स्कोरिंग चैप्टर। साइटोकाइनेस में इवन इन नॉन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक्सपेंशन ऑफ कॉटिलिडन्स इन सीड्स, सेकेंड पॉइंट है। हाँ, यूनिक फीचर, इसीलिए जो मैक्सिमम जो यूनिक फीचर्स है उसको हम लोग सेपरेट पॉइंट्स में लिखे। एक्सपेंशन ऑफ कॉटिलिडन्स इन सीड, ये हम लोग को फिर कहीं पे इसके रिलेटेड नहीं आ रहा है। जर्मिनेशन बोल रहा है, डॉर्मेंसी बोल रहा है, लेकिन ये एक्सपेंशन ऑफ कॉटिलिडन्स वाला पॉइंट केवल इसमें है। हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि आप देखो, ये जो सीड डॉर्मेंसी वाला पॉइंट है, ये इसमें तो हम लोग डिस्कस नहीं किए, मतलब ऑक्सिन्स में तो आया नहीं वो पॉइंट, लेकिन गिबरलिन में, साइटोकाइनिन में, ओके, और फिर इथाइलिन में और एब्सिसिक एसिड, चारों में आया ये पॉइंट। तो इसको आप कोई एक ऐसा नंबर दे दीजिए
जहां पे सब एक लाइन में आ जाए, तो इजीली कंपेयर हो जाएगा सबका। हाँ, एग्जाम्पल दिया है टेक्सटिंग में, ऐसे ना इसमें बहुत सारा पॉइंट्स रहता है, लेकिन हम लोग तो भाई जितना सिलेबस है, जितना पॉइंट्स दिया उससे आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं। Promote chlorophyll synthesis and delay leaf senescence. This is also, आपको ये पॉइंट यूनिक है, कहीं नहीं मिलेगा क्लोरोफिल सिंथेसिस वाला पॉइंट साइटोकाइनिन्स में, जबकि साइटोकाइनिन्स का बाकी सब पॉइंट्स आप कंपेयर करते जा रहे हो, सेल डिवीजन इलॉन्गेशन में, सीड डॉर्मेंसी जर्मिनेशन में, और इनिबिशन ऑफ एपिकल डोमिनेंस। हाँ, तो इसका जो दो यूनिक पॉइंट आ रहा है वो है नंबर 2 एंड नंबर 4, नंबर 2 एंड 4 यूनिक। तो हम इसको कर देते हैं स्टार। This content is original and not available anywhere on the internet. We are making it and we are refining it for our purpose. आपको कहीं किताब हो, आपका टेक्स्ट बुक हो या कोई ऑनलाइन रिसोर्स, अल्टीमेटली आप जब तक उसको डाइजेस्ट करके अपने लिए नहीं उसको आप ये बनाते हैं तो कोई फायदा नहीं। एब्सिसिक एसिड में नहीं है, क्योंकि एब्सिसिक एसिड का सीधा ये केवल सीड से शुरू किया, इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर है, बाकी सब तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव दिखा रहा है। ओके, इथाइलिन रिडक्शन इन स्टेम इलॉन्गेशन, स्टेम इलॉन्गेशन ऑक्सिन साइटोकाइनिन ऑक्सिन गिबरलिन में हुआ, और साइटोकाइनिन में स्टेम का इलॉन्गेशन तो नहीं हुआ, लेकिन ग्रोथ प्रमोट किया इवन इन नॉन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हियर देयर इज रिडक्शन इन स्टेम इलॉन्गेशन, इथाइलिन, तो यहां आप देख रहे हो कि नेगेटिव पॉइंट है। Acceleration of senescence, negative growth impact. Initiation of germination in peanuts, positive impact. Sprouting in potato tuber, positive impact. Induce flowering in mangoes, positive. Promote root growth and elongation, and ripening of fruits. Ripening of fruits एक तरीके से नेगेटिव में आता है, एजिंग प्रोसेस। हम देखना चाहेंगे कल सबका ये टेबल, रिवाइज टेबल फंक्शंस वाला, केवल फंक्शंस वाले को आप रीअरेंज कीजिए अपने तरीके से। ओके, एंड आई विल सी दैट। जो सबसे बढ़िया बनाएगा उसको हम कुछ टॉप ही देते हैं।
आज जो ऑनलाइन है उसको वर्चुअल टॉफी दे दे। नहीं तो एग्जाम लिखने आएगा तब दे देंगे, हैं? चलो। हैं? साइटोकाइनेसिस। फोर्थ पॉइंट, साइटोकाइनेसिस का फोर्थ पॉइंट, डिले लीव सेंसेस। हाँ, और एब्सिसिक एसिड में आप सब नेगेटिव पॉइंट ही देखें। इनिबिट सीड जर्मिनेशन, इंड्यूस डॉर्मेंसी, एक्सिलरेट सेंसेस एंड एब्सिशन, स्टिमुलेट क्लोजर ऑफ स्टोमाटा, स्ट्रेस हार्मोन बिकॉज इट इंक्रीज्ड टॉलरेंस टू वेरियस स्ट्रेस। अच्छा, ये जो फोर्थ पॉइंट है उसको नेगेटिव लेके चलेंगे, पॉजिटिव लेके चलें? पॉजिटिव ही लेके चलेंगे कि भैया बचा लिया, लेकिन है क्या ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू है ना, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, वी आर स्टार्टिंग अबाउट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो ग्रोथ को वो पॉजिटिव इंपैक्ट कर रहा है कि नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा है? नेगेटिव ही इंपैक्ट कर रहा है, स्ट्रेस हार्मोन है, नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा है। स्टिमुलेट्स क्लोजर ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा बंद कर दिया मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होना, रेस्पिरेशन नहीं होना, तो वो भी नेगेटिव इफेक्ट है। तो सब इसमें नेगेटिव इफेक्ट है, एबीए में सब नेगेटिव इफेक्ट। क्या हो? You have not joined the class. Could you please join the class? हाँ? ये क्या भैया, तब तक हम क्या? अरे तो वही हम सोचे कि तब से कुछ भी नहीं बोल रहा है दोनों। ठीक ठीक। अच्छा, इसीलिए डिस्कनेक्ट हो गया है कि कोई नहीं है। शाश्वत, तब से हम जो बोल रहे थे कुछ बहुत देर से डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? बहुत देर से डिस्कनेक्ट था। पहला बार मैसेज उषा ने किया, हम ट्राई किए, मेरा गया। फिर हम लोग ये लेफ्ट की मीटिंग फिर मैसेज। अरे राम, अच्छा ठीक है, तुम ये जो है हम ऐसे पीडीएफ भी भेजेंगे। अच्छा, अभी तो आ रहा है, अभी तुम इसको देखो, शेयर हुआ। कई बार होता है ना, वो जो मैसेज आता है वो टिंग टिंग बहुत हल्का से किया, हमको नहीं समझ में आया कि, लेकिन हमको मन में हो रहा था ये लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, बहुत देर शांति से लिख रहा है। ओके, सो हाँ, stimulates closure of stomata, yes, and it is stress hormone. तो शाश्वत ऐसे ये मतलब रिकॉर्ड भी होते जा रहा था क्लास, कोई दिक्कत नहीं, हम फिर तुमको भेजेंगे जहां पर तुम मिस हुए हो वो तुम उसमें देख सकते हो। और ऐसे जो है ना, अभी जो भी हम लोग लिख रहे हैं हम वो पीडीएफ ग्रुप में भेज देंगे। तुमको करना क्या है कि इस टेबल का जो पार्ट है इसको रीअरेंज करना है, अपने से तुम लिख के हमको कल दिखाओगे। ये जो 5 फाइटो हार्मोन्स है इसके फंक्शंस को कंपैरेटिव रूप में अपने तरीके से वेयर देयर आर सिमिलैरिटीज उसको मैच करते हुए इस तरीके से आप बनाइए उसको। हाँ, बना के हमको कल दिखाना। चलो लिख। तो इस चैप्टर का 2 भाग है, एक हुआ फाइटो हार्मोन्स और दूसरा हो गया ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म से कम 3 मार्क्स
आएगा, और एक डेफिनेशन आएगा ही आएगा, और सब बच्चा, मैक्सिमम बच्चा उसमें गड़बड़ी करता है। क्या गड़बड़ी करता है हम लोग डिस्कस करें। promote growth, promote root growth and elongation. First point है reduction in stem elongation. First point, second point. हाँ, तो promote root growth and elongation यहाँ पे रिवर्स हो गया, नेगेटिव इंपैक्ट है ना, पॉजिटिव इंपैक्ट है। तो देखो तुम अपने तरीके से उसको फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट रीअरेंज कर सकते हो उस तरीके से, ठीक है। PDF I will send, you can see that, okay, no problem. We'll move on to the next one, that is tropism, tropic movements. Basic understanding of the tropic movements in plants with reference to phototropism, geotropism, hydrotropism, thigmotropism, chemotropism with suitable examples. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ ट्रॉपिज्म, इसके पहले भी पूछा है, आप जो है पूरा जो है कहानी खत्म हो गया, लेकिन बेसिक ट्रॉपिज्म का डेफिनेशन नहीं लिख पाए, ये हो जाता है। तो इसको आप डेफिनेटली लिखिए, ट्रॉपिज्म। व्हाट इज ट्रॉपिज्म? पूरा कहानी यहीं से शुरू हो रहा है। ट्रॉपिज्म द बायोलॉजिकल फिनोमिना ऑफ डायरेक्टेड ग्रोथ मूवमेंट्स इन प्लांट पार्ट्स in response to unidirectional environmental stimuli. बायोलॉजी का बाप भी आएगा तो नहीं काट सकता इसको, एक पॉइंट भी इसमें इधर उधर नहीं। बायोलॉजिकल फिनोमिना ऑफ डायरेक्टेड ग्रोथ मूवमेंट्स, इसमें की टर्म है डायरेक्टेड ग्रोथ मूवमेंट्स। ज्यादातर स्टूडेंट मूवमेंट लिख के छोड़ देता है, बट दिस मूवमेंट इज ट्रॉपिज्म इज व्हाट? ग्रोथ मूवमेंट। एंड विच टाइप ऑफ ग्रोथ मूवमेंट इट इज अ डायरेक्टेड in some direction. So it is a biological phenomena of directed growth movement in plant parts. We will not say simply whole plant, plant parts, in response to what? Unidirectional environmental stimuli. अब जैसे कि phototropism, the directed growth movement in plant parts in response to light. अच्छा, तो टार्च लेके तुम दिखाओगे कि प्लांट उस तरफ ग्रो करने लगेगा? नहीं होता है भैया। यूनिडायरेक्शनल राइट, व्हाट इज दैट? आया, दिस इज अनदर पॉइंट, बी केयरफुल व्हाट द टर्म यू आर यूजिंग। इट इज यूनिलैटरल, इट इज नॉट यूनिडायरेक्शनल। लाइट हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज। द light will vibrate in the different directions, in not just one plane. If it is only vibrating in one plane, it is called polarized light. Okay, so we will not use the term unidirectional, because LED light is unidirectional, but tube light is not unidirectional. तो इसका क्या मतलब है? प्लांट अगर LED लाइट को रिस्पॉन्ड करेगा लेकिन ट्यूब लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ऐसा बात तो नहीं। यूनिलैटरल लाइट का मतलब हुआ कि आप एक तरफ से लाइट दे रहे हैं लेकिन दूसरा सब जगह है वो डार्क है या बहुत कम रोशनी उसको मिले, उस सिचुएशन को आप बोलेंगे यूनिलैटरल। जैसे बोलते हैं ना कि हमने यूनिलैटरल डिसीजन ले लिया है, मतलब भाड़ में जाए सब लोग, मैंने तो ले लिया डिसीजन, यूनिलैटरल। The directed growth movement in plant parts in response to what? Unilateral light. Gravitropism, the directed growth movement of plant part in response to stimulus of gravity. ज्यादातर बच्चा क्या लिख देता है?
ग्रोथ ना, ग्रोथ तो छोड़ो ना, ग्रोथ लिख भी नहीं करे, लिखा मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स ग्रेविटी, 0 नंबर। हाँ, हाँ लिखो जियोट्रॉपिज्म, अनदर वर्ड, यस इंक्लूड। जियोट्रॉपिज्म, इसको हम मेन टेक्स्ट में भी इंक्लूड कर लेते हैं। क्या हो गया? नेक्स्ट, क्लिनोस्टैट। A mechanical device that rotates at low speed in horizontal axis। यहां पे एक थोड़ा सा used to investigate ग्रेविट्रोपिज्म या जियोट्रोपिज्म, जो आपको शब्द लिखे कोई दिक्कत नहीं, इन प्लांट्स। हम सजेस्ट करेंगे जियोट्रोपिज्म लिखो, क्योंकि आपके सिलेबस में भी जियोट्रोपिज्म ना लिखा हुआ है, जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म इन प्लांट्स। Mechanical device that rotates at slow speed in horizontal axis used to investigate geotropism in plant। ये जो लेटर पार्ट ऑफ द डेफिनेशन है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ जियोट्रोपिज्म। हमको याद है क्लास 9 क्लास 10 था, साइंस का क्लास होता था तो लड़ाई होता, झगड़ा, लड़ाई, फायर, ये क्यों ऐसे, नो दिस इज करेक्ट, नो दैट। आजकल तो सब एकदम दाल रोटी खा के तो चल। हाइड्रोट्रॉपिज्म, the directed growth movement in plant parts in response to the source of water or moisture gradient। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन को यूनिफॉर्म बना देगा। ऑक्सीजन, आपका फोटोट्रॉपिज्म हो कि जियोट्रॉपिज्म हो, कोई भी ट्रॉपिज्म हो, सबका बेसिस है ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोट्रॉपिज्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे ज्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। इन रेस्पॉन्स टू वाटर लिख दिया, खत्म कहानी। भैया क्या, सोर्स ऑफ वाटर और मॉइस्चर ग्रेडियंट। डायरेक्टेड ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट पार्ट्स इन रेस्पॉन्स टू सोर्स ऑफ वाटर और मॉइस्चर ग्रेडियंट। देखिए, दो टाइप के लोग हैं, एक है चलता है वाला, चलता है लिखा हुआ है ना, टेक्स्ट बुक में भी वही लिखा है, चलता है, लेकिन एग्जामिनर भी देखता है चलता हुआ कौन बच्चा फॉलो कर रहा है और कौन रिगरस लिखा है। बात जब एक नंबर में कटना चाहिए। देव, one fellow was there, did I tell? Last time there was Ranjan, one got 100 out of 100, and other fellow is Dev, he also got 100 out of 100. लेकिन वो थोड़ा सा
मोबाइल खराब हो गया था, उससे बात करने में लेट। टू फेलोस। चलो नेक्स्ट। थिग्मोट्रॉपिज्म, डायरेक्टेड ग्रोथ मूवमेंट in plant parts in response to mechanical contact or stimulus of touch. Chemotropism, biological phenomena of directed growth movement of plant part towards the source of nutrient or chemicals. ज्यादातर स्टूडेंट सिंपली ले टुवर्ड्स न्यूट्रिएंट और केमिकल्स, टुवर्ड्स व्हाट, सोर्स ऑफ। देखिए ये दो जगह पे आपको आता है सोर्स। Heliotropism, plants respond to sun's movement across the sky। देखिए बहुत ही ज्यादा फर्क है हीलियोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म के डेफिनेशन में। प्लांट्स respond to sun's movement across the sky by turning flowers, leaves or stems towards the sun as it moves। नहीं, sun's movement in the sky, that's all। क्या हीलियोट्रॉपिज्म भी नेगेटिव हो सकता है? सनफ्लावर पॉजिटिव हीलियोट्रॉपिज्म, क्या नेगेटिव हीलियोट्रॉपिज्म भी होता है? सम फ्लावर्स इन ट्रॉपिकल, बहुत ज्यादा गर्मी वाला जो सब उसमें वो उल्टा अप रहता है, ऐसे सन थोड़ा सा गर्मी कम करने के लिए वो सब अपने उसमें। इस चैप्टर में डेफिनेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रहा एग्जाम्पल। टेक्स्ट बुक में थोड़ा एग्जाम्पल्स है, सेम एग्जाम्पल्स आप इधर लिख लोगे। ड्रॉसीरा करके एक है, Drosera is what coming under example of chemotropism। Drosera chemo, ये कैसा पौधा है भैया? इज ऑल्सो नोन एज सन ड्यू प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट। उसका ऐसे बाल बाल जैसा निकला रहता है और उसके लास्ट में जो है ना, जो ड्यू ड्रॉप जैसा बना हुआ रहता है, लेकिन वो रहता है गोंद, जैसे मक्खी बैठा हुआ है ऐसे करके उसको पूरा। तो उसका मूवमेंट क्या हुआ, न्यूट्रिशन की तरफ वो प्लांट में इस टाइप का है ड्रॉसिरा। नहीं, जैसे कि माइमोसा पुडिका टच किया, मूव किया, वो दिन तो मूवमेंट हुआ, क्या वो थिग्मोट्रॉपिज्म है? थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल क्या है? टेंड्रिल्स ऑफ पी प्लांट का स्क्यूटा, इस टाइप का जो भी है, जो क्रीपर्स है उसका टेंड्रिल्स। तो आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे माइमोसा पुडिका इज नॉट गिवन एज एन एग्जाम्पल in this thigmotropism, because it is not thigmotropism, it is thigmonasty।
थिग्मोनास्टी मतलब जिसमें डायरेक्शनल ग्रोथ नहीं हो, डायरेक्शन नहीं है, यूनिलैटरल नहीं है वहां पे, तो that is not coming under the tropism. It is not a tropism, it is nasty. हाँ, इंसेक्टिवर नहीं नहीं नहीं, ऐसे सिंपल इंसेक्टिवर्स प्लांट नहीं लिखना। ड्रोसेरा कभी ऐसे यूट्यूब में देखना, तो ड्रोसेरा बहुत अच्छा लगता है देखने में। ओके, इन दैट यू कैन सी। ठीक, चलो, so these are the points today, for today I wanted to share. Okay, so just you do this part. Okay, table 1 functions, और कल हम हीलियोटॉप लास्ट वाला पॉइंट। अच्छा, हम ऐसे भेज रहे हैं तुमको, क्या बोलते हैं, पीडीएफ हम भेज देंगे, उसमें कल हम लोग फोटोसिंथेसिस का करेंगे। सब चैप्टर्स का टेस्ट हम लोग कर चुके हैं। नहीं, हम लोग जो है ना इसको खत्म कर, ये नोट्स टाइप का जो है, नोट्स अभी हम लोग किए नहीं है ना, क्योंकि एग्जाम में तो ये लिखोगे तो इसी बेसिस पे लिखोगे ना। समझने वाला काम हम लोग का हो गया, एक बार तुम लोग अपने से पढ़ के लिख लिए। अभी नेक्स्ट स्टेज है कि कीवर्ड्स कैसे इंसर्ट करके लिखना है, कहां पे कितना वेटेज पड़ता है। ठीक, थैंक यू।